Assalamu alaikum everyone. My name is Nayab Iqbal and today is our first session of the course Functional English. So I'll briefly begin with my introduction. I have done my master's in English linguistics from the University of Karachi in 2014, and I have also done my coursework for MPhil, and I have future plans of pursuing a PhD degree. I'll be teaching you the course of Functional English as the visiting faculty member at Lyari University. Before Lyari University, I have taught in Barrett Hodgson University for 2 years as a full-time faculty member, and there I have taught various courses of English like Functional English and Communication Skills, Business English and Presentation Skills and Communication and Writing. Besides that, I cleared my civil services exam and was allocated to Commerce and Trade Group, but since it wasn't my preference, so I did not continue with it, and now I have plans of pursuing my PhD because teaching is something that I really enjoy. Besides that, my favorite hobby is reading books, and particularly reading social books. We'll be discussing we'll be talking about the importance of communication skills in the first session, and the reason that I gave you my introduction was because I think it's very important for you to know me as a teacher and also for me to know you as my students. But since in the beginning few sessions we'll be conducting it online, and I'll most probably will be sharing will be sharing the recorded lectures with you people. That is the reason that probably we cannot have one-on-one introduction. तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन मेरे साथ इसी वजह से नहीं हो पाएगा, बट आई वुड बी रियली ग्लैड इफ यू राइट एंड शेयर अबाउट योर सेल्फ विथ मी थ्रू राइटिंग. तो अगर आप लोग लिख के या गूगल क्लासरूम के थ्रू इफ यू इंट्रोड्यूस मी योर सेल्फ पर्सनली, सो that would really help me know who are you or what are your interests and what are you looking for, especially from your communication classes. Okay, so besides that, I have your course outline of Functional English, the approved course outline of your university, which I have just received a day before. So the outline, you already are done with Functional English 1, and I assume that you people will be familiar with basics of English language, which includes the introduction to 4 skills of language and the basics of grammar. तो चूंकि आप लोग फंक्शनल इंग्लिश 1 पढ़ चुके हैं, तो मेरा ये अंदाजा है कि आपको जो लैंग्वेज के बेसिक्स हैं वो पता होंगे, और आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है उनसे हो चुका होगा, क्योंकि आपकी जो अप्रूव्ड करिकुलम है फॉर फंक्शनल इंग्लिश 2 वो बहुत ज्यादा इट्स ओनली राइटिंग ओरिएंटेड. उसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें से 2 बुक्स जो है मैं आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, एंड इन योर क्लास टाइमिंग दैट इज 9 to 12 ऑन मंडे. मैं अभी आपके ग्रुप पे भी गूगल क्लासरूम का कोड भी शेयर कर दूंगी. तो आप जब कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इट्स मोस्टली राइटिंग ओरिएंटेड. तो वो स्टार्ट हो रहा है कि एक इंट्रोडक्शन है राइटिंग का, अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं राइटिंग में, राइटिंग के पर्पस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देन द बेसिक्स ऑफ राइटिंग के हाउ टू प्लान योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू फॉर्मुलेट अ पैराग्राफ, फिर उसमें एसे के टाइप्स हैं, फिर एंड में उसमें जाके आर्टिकल हैं, समरी राइटिंग है, राइटिंग अ पेपर है. तो you have to learn different types of writing in this course because this course is writing oriented. तो उसके लिए you have to work from the very first day of the semester. आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती होगी, जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती होगी, and I can completely understand because it's really natural that you get nervous, और उस तरह की हमारी language proficiency नहीं होती. We do not get that exposure जिसमें हमें लिखने के different मौके मिल सकें. तो उस सिलसिले में we'll be discussing in the second slot, in the second session. I'll actually begin with the first topic, but
Before we move on to the first topic, it's very important for me to make you realize the importance of communication skills. तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि communication skills आना आपके लिए क्यों जरूरी है. Because you know, in my experience of teaching, I have come across a lot of students who think that they have other major courses and you know English is sort of a burden for them. तो बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं उनकी क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनके मेजर कोर्सेज हैं, तो भले से 3 क्रेडिट कोर्स होता है लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यू नो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. So communication skills is something that you cannot get away from even after you are done with your graduation, after you're done with your masters. If you want to have an edge over other individuals of your profession, of your age group, then having interpersonal skills, communication skills, soft skills is very important in today's era of interconnectedness, globalization and technology. तो हम सबको अभी इस टाइम में पिछले 6 महीनों में कोरोना के टाइम में अंदाजा हुआ कि how the future of the world is technology, how people will connect through technology. और उसमें you get to connect with people from अब even when people work in offices, they have virtual teams. You are sitting in Pakistan, but you might be working with anyone sitting in any other country. So you cannot just get away without you cannot just do without having proper basic at least and comprehensible speaking and writing skills particularly. And obviously for that you need to work on all the 4 skills of language. That is, if you want to become a good speaker, it's very important for you to be a good listener, because the more you listen to any language, the more you are able to speak that language. तो सिर्फ ग्रामर के रूल्स पता होने से जबान, कोई भी जबान नहीं आती, आप उसको बोल नहीं सकते until unless you have that exposure. और एक्सपोजर कैसे आता है? जितनी आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी देते हैं उस लैंग्वेज को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में सुनने की. सो इफ यू आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ documentaries, news items, and you're watching movies, so you after a certain period of time you internalize that language structure. So that is why for becoming a good speaker, having exceptional listening skill is important. Similarly, since this course is particularly focused on writing skills, I would re-emphasize the importance of reading. So if you really want to become a good writer for your future prospects, for applying abroad, for scholarships, for appearing in any employment test later on in your life, it's very important for you to develop the habit of reading. तो वो आप अभी से शुरू करें अगर आप नहीं करते हैं. और मुझे लगता है बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो रीडिंग करते हैं, या तो वो उर्दू का कोई रिसाला पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, या कुछ लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं. तो अगर अभी तक आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं कि मतलब मैं किस तरह से कर सकूंगी या कर सकूंगा, और किस तरह से मतलब रीडिंग कैसे होगी, तो take small steps. Start reading something from today. So first thing, please develop a habit of reading newspapers. It's important for you not only from the point of view of developing your language skills, but for you as a business student, as a business graduate. It's very important to be aware of all the latest current affairs, news, latest trends in business. So keep yourself updated, because there is no there is no alternative for being aware or for having knowledge. So please aim for that, having that sort of knowledge, that you're aware of what is happening around you in this world. So keep yourself updated.
Okay, so since I wanted to discuss the importance of communication skills, please know that effective communication skills is what will become your path to success. And believe me, I'm not exaggerating. I have already told you that now we are surrounded with network digital communication. Abhi coronavirus mein, there were businesses that were shut down physically, and people coordinated, online, and not even in COVID, even before that. अब एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल टीम्स का, वर्चुअल ऑफिसेस का, जिसमें मल्टी कल्चरल लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग साथ काम कर रहे होते हैं. तो इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, communication skills have become important more than ever. तो शायद आज से 2 decades पहले इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी कम्युनिकेशन स्किल्स की, मगर आज है. तो अब आप बात और सवाल ये होता है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात कर रही हूं, तो व्हाई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाई नॉट उर्दू, या व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज? तो देखें, इंग्लिश इज आवर लिंगुआ फ्रैंका, एंड लिंगुआ फ्रैंका इज LINGUA लिंगुआ फ्रैंका. तो लिंगुआ फ्रैंका कौन सी जबान होती है? ऐसी कोई भी जबान जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोगों को साथ में कनेक्ट करती है, वो लिंगुआ फ्रैंका कहलाती है. English is an international language. All over the world, people have admitted the importance of English language. Previously, there were few countries where English wasn't, preferred, and they used their own language. But for trade purpose, for business purpose, for international business, they knew that if they did not learn English, that will be a barrier for them. तो उनको ये एहसास हुआ है टाइम के साथ कि इसके बगैर, survival is difficult. So that is why, English basically serves as a passport for getting better employment opportunity, which you might not have otherwise. तो अगर आपके पास वो इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं है, तो और वो लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से चली जाएं. यू माइट बी एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट और इंडिविजुअल इन योर फील्ड, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट थ्रू योर लैंग्वेज एंड योर पर्सनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज, तो वो एक बैरियर बन सकता है. तो मुझे यकीन है कि मतलब आप नहीं चाहेंगे कि वो आपके लिए बैरियर बने. तो बस कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज. अच्छा, because job candidates with exceptional communication skills always stand out. So there might be 2 people who have equal subject knowledge, content knowledge, but if one has exceptional communication skills, good interpersonal skills, that person will stand out and will be chosen over the second person. And that's something that I'm not exaggerating, because in communication skills in all over the world, it is considered as one of the most desirable skills from the point of view of the employer. So it's very important to have communication skills for effective job placement, performance, and even for your career advancement. And now is the time when young people like you all need more than basic maths or basic reading skills. So now times have really changed, and there are few skills which you need to, because you are first year students, it's just the second semester, and you including this semester you have 7 more semesters, right? So believe me that the habits that you develop as a student in your university student life are habits that that remain with you for a very long period of time. So just develop some positive habits, because now you really need some substantial knowledge. You need to have basic IT skills, information technology skills, basic computer skills. You need to have advanced thinking skills. It's not the time where you just read or cram something or bas ho gaya. You should be able to think, have creative ideas.
you should be able to have effective interpersonal skills so that you can functional in a multicultural environment. तो आप आगे का एम करेंगे तो उसके लिए जो आप आज कर रहे हैं दैट विल हेल्प यू अचीव योर गोल. और मैं बीच बीच में उर्दू में भी कोशिश कर रही हूँ कि उसको बात को रख सकूं ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो. बट माय कोर्स इज इंग्लिश एंड आई एम यूजिंग दैट लैंग्वेज, तो आपको उससे एक्सपोजर हो. एंड प्रोबेबली इफ द यूनिवर्सिटीज आर ओपन देन वी विल बी हैविंग फिजिकल 1-to-1 session, and that maybe at that time you can share your queries with me in a better way, or maybe you can write to me now as well. So now obviously this is the information stage, information age. So even there is no concept of just 9-to-5 jobs or sort of like this thing. It's like you are involved in communication every time. It's like anywhere, anytime. It's like 24/7 availability. And also now because of international cooperation, globalization, it's a global marketplace, और इसी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी भी बहुत बढ़ गई है. तो कुछ तो टेरिटोरियल ऑफिसेज हैं कि आप एक जगह पे हैं वहां काम करें, लेकिन वर्चुअल ऑफिसेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़ गया है. तो इट्स इफ यू हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू read different reports. So according to studies of Fortune 500 companies, they report that soft skills such as listening, writing and speaking are more likely to determine higher career success. तो अगर आपके पास ये skills हैं तो आप ज्यादा you have opportunity to succeed in your career. अच्छा जी, अब कोर्स आउटलाइन जो है वो आपसे मैं इस क्लास के बाद बिफोर वी हैव नेक्स्ट सेशन ऑन नेक्स्ट मंडे मैं आपको कुछ टास्क दूंगी. उसमें से एक है कि आपको कोर्स आउटलाइन को पूरा देख कर आना है. अच्छा, उसमें कोर्स आउटलाइन में आप देखेंगे कि इट्स ऑल अबाउट राइटिंग. Now, before I actually start teaching you writing or the basics of writing, I would want you to just have a little review of what you should have studied or you must have studied in Functional English 1. So I assume that you have had gone through the basics of language skills. और writing skills के लिए बहुत जरूरी है that you have basic language skills. So for example, you have the knowledge of tenses, and with knowledge of tenses I do not mean that you're just familiar with the rules. क्योंकि जो हमारा मैट्रिक तक जिस तरह की अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या इंटर तक भी जिस तरह की अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो उसमें फोकस ये होता है कि बच्चों को हम ये बता दें कि जो है ये रूल्स हैं और इस तरह से इस वाले टेंस का ये रूल है. बट दैट इज नॉट समथिंग दैट I would be more concerned with. With knowledge of tenses, I mean that you should know that when do we use a particular tense and when that tense is not appropriate. So for example, you must know what is the usage of present indefinite tense. So for example, one of the usage of present indefinite tense is I teach English. So it's not only the structure that you have to understand, you also have to understand the context in which this tense is used. So if I say I teach English, it's a truth, it's a fact. So in this context, present indefinite is the tense which will be used. For example, if you're saying I go to university every day, now it's a habitual use. You're talking about your habit. So this is yet another usage of present indefinite. So like this, you need to be aware of each tense and their aspect. You all know tenses, past, present and future, and their aspects: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So when is each used? What is their usage? In which context they are used? How they are different, how one tense is different from another tense, और किस context में हमें कौन सा tense use करना चाहिए. तो I hope कि आपको ये basics पता होंगी. अगर नहीं पता है तो I would suggest you that you go research and revise the usage of tenses. अच्छा, इसी तरीके से
एक चीज जो कि आप बहुत ज्यादा आप राइटिंग कर रहे होंगे इस कोर्स में, तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंटर तक पढ़ाई जाती है, तो उसमें आपको मोस्टली वो नोट्स दे देते हैं, उसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं, 9 मैट्रिक के चैप्टर्स हैं, तो उसमें ये होता है कि जो है उसमें आप चैप्टर को देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उसको आप याद कर लेते हैं, और इसी तरह से आप समरी को याद कर लेते हैं, पोएम्स हैं तो उसकी समरी को याद कर लेते हैं, और एग्जाम में जाके एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। लैंग्वेज में कहीं भी काम ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज को याद करें, उसको मेमोराइज करें। लैंग्वेज इज मोर अबाउट डूइंग थिंग्स, लैंग्वेज इज मोर अबाउट बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट यूजर ऑफ दैट लैंग्वेज। तो अगर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को याद कर रही हूँ, लेकिन जब रियल कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है तो मैं एक लाइन भी सही से नहीं बोल पा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट अ गुड यूजर ऑफ लैंग्वेज। बट इफ आई एम एबल टू कम्युनिकेट माई आइडियाज विथ relevant ease, and I am able to express myself, this shows that I am a good user or an effective user of English language। ठीक है, तो आप लोगों का क्योंकि वो एक्सपोजर नहीं रहा है, तो लिखने में जब आती है प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बच्चों को मसाइल होते हैं लिखने में। तो एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो होता है कि इनकंसिस्टेंसी होती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है SV सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मतलब अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वी ऑल नो कि वर्ड में S और ES ऐड होता है, ही शी इट अगर है, और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दे यू दे वी या यू या आई है, तो जो है वर्ब में S या ES नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू स्कूल बट आई गो टू स्कूल। तो ये जो कंसिस्टेंसी है सब्जेक्ट और वर्ब में, ये बहुत बच्चे इसमें मसले करते हैं, तो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बिकॉज दैट इज ये बड़ा बेसिक एरर होता है। इसी तरीके से टेंसेस सबने पढ़े होते हैं, मगर जब वो फ्लुएंसी में बच्चे लिख रहे होते हैं, जो हमारे पास एडमिशन टेस्ट में भी एसेज आते हैं, तो उसमें मोस्टली इस तरह से ये देखा गया है कि व्हेन चिल्ड्रन आर यूजिंग डिड, तो वो उसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ जो है वो वर्ब यूज कर रहे होते हैं। अब आप सबको पता होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज पास्ट, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं बहुत ही बेसिक एक एग्जाम्पल दूंगी जो स्कूल में हर बच्चे ने पढ़ी होती है, ईट, एट, ईटन, राइट। तो अब अगर आप कह रहे हैं आई डिड नॉट, मैंने नहीं खाया सुबह, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, या मैंने सेब नहीं खाया, सो यू ऑलवेज से आई डिड नॉट ईट। डिड के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। सो आई हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स राइटिंग लाइक आई डिड नॉट और सेइंग आई डिड नॉट एट, तो दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये हर अच्छी अंग्रेजी की बुक्स में दिया हुआ होता है। अगर अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी फुल फ्लेज राइटिंग आपकी पहले ही हफ्ते नहीं शुरू हो जाएगी, तो आपके पास टाइम है, तो एक बुक है जॉन ईस्टवुड की, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। वो आई थिंक 300 एंड समथिंग तक की होती है, वो आप सब ले लें। उसमें ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं विद कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं है कि सिर्फ वो उन्होंने रूल्स बताए हुए, विद एग्जाम्पल्स उस बुक में मौजूद हैं, विद कॉन्टेक्स्ट इस बुक में है, तो वो आप ले लें। और उससे क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको एक्सप्लिसिटली ग्रामर के यूसेज नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक्सप्लिसिटली समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा कोर्स थोड़ा सेकेंड एडवांस लेवल का है। तो इसलिए आप ये बुक लें और इंडिपेंडेंटली दिन में आधा घंटा 20 मिनट निकाल के एक बार गो थ्रू। अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में कंफ्यूजन है, तो उसकी आप लिस्ट देख लें। अगर टेंसेस के किसी यूसेज में कंफ्यूजन है तो आप इंडेक्स में जाके देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसका जब आप पेज खोलेंगे तो पहले पेज में उन्होंने यूसेज बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, उसके बराबर वाले पेज में उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, तो फिर आप वो एक्सरसाइज देख लें। तो इस तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस रहेगी लैंग्वेज से। अच्छा, और यू नीड टू बी फेमिलियर विथ अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब
एक तो तरीका उसका ये होता है कि टीचर्स बता देते हैं भाई ये ग्रामर है, ये ऐसे है, ये रूल है, लेकिन एक होता है जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो है रीडिंग। तो व्हेन यू कंटिन्यूअसली रीडिंग एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, अब आप हर महीने, चले मैं हफ्ता नहीं बोलूंगी बिकॉज आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है, लेकिन आप कोई भी, आप में से कुछ हैं जिनको सोशल इश्यूज पे पढ़ना पसंद है, आप में से कुछ हैं जिनको पॉलिटिकल बुक्स पढ़ना पसंद होंगी, तो आप अपनी पसंद की कोई किताब रख लें और आप बस अगर मंथ में एक भी पढ़ रहे हैं तो आप सबकॉन्शियसली जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप उसको इंटरनलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज से फेमिलियरिटी चाहते हैं और अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग के थ्रू आपको बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का अंदाजा होगा, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राइटिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है और राइटिंग की रिसेप्टिव स्किल क्या है? रीडिंग। सो द मोर यू रीड द बेटर यू विल राइट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं एक रिव्यू जैसे अभी दे रही हूँ, मैंने टेंसेस की बात की, इसी तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो उसमें भी जो स्कूल्स में बच्चों को मैंने देखा है, जो 9 मैट्रिक के मैंने 5 इयर्स देखे हैं, तो उसमें यही है कि वो बस एक सेंटेंस होता है और उसको पैसिव में चेंज करते रहो। आई रेड द बुक इज रेड बाय मी, आई गो टू आई बेक द केक द केक इज बेक्ड बाय मी। तो इस तरह की चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, लेकिन असल जो जरूरी है वो आपको समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव वॉइस यूज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में पैसिव वॉइस यूज करना ज्यादा बेहतर है। तो पैसिव वॉइस इज प्रोबेबली यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, व्हेन यू वांट टू अवॉइड एजेंसी। सो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस तरह की हेडलाइंस होती हैं कि 2 men shot dead, तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। नाउ हु शॉट 2 men वी डू नॉट नो, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल वे में बोला जाता है mistakes were committed. Now here we either do not want to blame anyone or maybe we do not know that who committed the mistake. तो पैसिव वॉइस यूज करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब रूल समझाने के लिए ये नहीं होता कि मैं आपको हर सेंटेंस को बोलूं कि इसको पैसिव में चेंज कर दूं। जैसे मैंने 5 इयर्स में देखा है कि शट द डोर, लेट द डोर बी शट, तो इसमें लेट द डोर बी शट बोलने की कोई जरूरत, इस सेंटेंस को पैसिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूसेज, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिसकी पैसिव में चेंज जो नहीं होता। सो पैसिव में चेंज सिर्फ वही सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट द लेटर, नाउ आई इज द सब्जेक्ट, रोट इज द वर्ब एंड लेटर इज द ऑब्जेक्ट, तो ये पैसिव हो सकता है, द लेटर वॉज रिटन बाय मी। मगर अगर मैं बोलूं आई रन फास्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। I is the subject, run is the verb and fast is an adverb, ठीक है। तो अब इसको आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से अगर है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, शी इज ब्यूटिफुल, तो आप इसको भी पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। जबरदस्ती हर सेंटेंस को पैसिव में नहीं करना है, उसका यूसेज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं और अगर आपको कोई एग्जामिनर असेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है, आप आइल्स देना है आपको फ्यूचर में, तो एग्जामिनर आपकी राइटिंग को असेस करेगा, तो you will be considered as a good writer, as an effective writer, अगर you are able to use a variety of sentence structure। तो आप simple sentences भी use कर पा रहे हैं, आप compound sentences भी use कर पा रहे हैं, आप complex constructions भी use कर पा रहे हैं, आप active passive दोनों proper context में use कर पा रहे हैं। यही रीजन है कि मैं ग्रामर के हर एस्पेक्ट को इस क्लास में, इस सेशन में थोड़ा रेफर कर रही हूं, ताकि इसको अगर डिटेल में आपको समझना है या आपने पहले इसको इस नजरिए से नहीं पढ़ा है, तो आप जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर को खरीदने के बाद उन टॉपिक्स को देखते रहें डेली बेसिस पे। इसमें कोई मैं आपको होमवर्क या कोई इस तरह की चीज नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मुझे तो आपको डायरेक्ट राइटिंग से शुरू कराना है, मगर मुझे इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं आपको बेसिक्स का अंदाजा है नहीं है, वो आप साइड में अपनी उस स्किल्स पर काम करते रहें।
इसी तरीके से आप सबको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अगेन डायरेक्ट स्पीच किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में इनडायरेक्ट स्पीच इज अ बेटर ऑप्शन, दिस इज अगेन समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट यू नीड टू वर्क ऑन। इसी तरीके से एक चीज है जो राइटिंग में अगेन बच्चे बहुत ब्लंडर कर रहे होते हैं, वो है इनकरेक्ट punctuation ka. So you need to understand the importance of punctuation, because you know if you use incorrect punctuation it can alter the entire meaning of the sentence. तो इस तरह के तो आपने कुछ कुछ फनी से आपने जोक्स भी देखे होंगे जिसमें punctuation कुछ और है तो मीनिंग बिल्कुल बदल गया। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कहाँ पे you need to use a comma, वो कहाँ पे you need to put a full stop, कहाँ पे you need to use a semicolon और colon और m dash यूज होता है। तो if you want to elaborate something तो either you would use a semicolon or you use an m dash, ये देखना बहुत जरूरी है। अगेन जब आपका लिटरेचर से एक्सपोजर होता है, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने आप अंदाजा होता है कि अच्छा इस तरीके से लिखना है। तो अगर मैंने बहुत ज्यादा बुक्स अगर पढ़ी हुई हैं तो ही मैं बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ इस चीज को। अच्छा, फिर हम सबको बचपन से अगेन बच्चों को पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसको बेसिकली अब वर्ड क्लास कहते हैं। तो हम सबको पता है नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। तो अगेन उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी राइटिंग में प्रॉपर एक्सप्रेसिव वर्ड्स यूज कर सकें। सो यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडजेक्टिव्स, यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडवर्ब्स, यू नीड टू नो कि कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है। कंजंक्शंस हैं तो किस दो तरह के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। अगेन ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर में भी होगा। तो उसको कैसे यूज करना है, कब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, कब आपको हर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप डालना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से वर्ब्स हैं तो रेगुलर और इनरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिंपली ईडी ऐड करके या डी ऐड करके बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर वॉक्ड एंड वॉक्ड। बट इरेग्युलर वर्ब कौन सा है? ईट इज एन इरेग्युलर वर्ब, क्योंकि ईट का सेकंड और थर्ड फॉर्म सिंपली ईडी या डी ऐड करके नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाय इज एन इरेग्युलर वर्ब। बाय का बाइड नहीं होता, बाय का बॉट एंड बॉट। इसी तरीके से टीच, टीच इज एन इरेग्युलर वर्ब। यू डोंट सेकंड फॉर्म ऑफ के लिए वर्ब ये नहीं है कि आई टीच्ड, टीच्ड इज नो वर्ड। इसका पास्ट फॉर्म है टॉट एंड पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो टॉट। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ताकि आप इनकरेक्ट फॉर्मेशंस ना करें। इसी तरीके से आपको क्लॉजेस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अभी मैंने कंजंक्शन की बात की थी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं एंड और बट, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो राइटिंग में सेंटेंस फ्रैगमेंट्स कर देते हैं, वो इनकरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर आप कह रहे हैं ऑल्दो आई वाज टायर्ड, फुल स्टॉप, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये ऑल्दो आई वाज टायर्ड ये सिर्फ एक क्लॉज है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। चूंकि मैं थका हुआ था, फुल स्टॉप, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऑल्दो जबकि मैं ऑल्दो आई वाज टायर्ड, जबकि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने क्लास ली, तो ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई अटेंडेड द क्लास, ठीक है। तो अगर आप ऑल्दो के बाद मेन क्लॉज के बाद सेंटेंस, मेन क्लॉज के बगैर सेंटेंस एंड कर देंगे तो ये सेंटेंस फ्रैगमेंट कहलाता है और ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर में शामिल होता है। इसी तरीके से बहुत बच्चे हैं जो आईएनजी फॉर्म्स को अननेसेसरीली यूज कर रहे होते हैं, हर जगह वो आईएनजी लगा रहे होते हैं जबकि आईएनजी की उस जगह पे जरूरत नहीं होती। तो ये आपको समझना और देखना, इसको सही से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हर जगह आईएनजी नहीं लिखनी है। तो अच्छा जी, फिर मैं इस जो फर्स्ट हमारा सेशन है, फर्स्ट हमारे इकट्ठा 2 सेशंस हैं, तो इसमें मैं आपको फिर से आई वुड रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। प्लीज सिर्फ ये मेरे कोर्स के लिए 3-4 महीने का जो कोर्स है मैं उसके लिए नहीं कह रही, इट्स अ लाइफ लॉन्ग हैबिट जो आपको हेल्प करेगी। आगे आपके बहुत सारे
आपकी बहुत सारी चीजें जो आप परसू करना चाहेंगे, हायर स्टडीज, कुछ लोग CSS करना चाहते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं. सो आई डिड माई CSS एज वेल. आई वेंट फॉर ट्रेनिंग, लेकिन फिर मुझे टीचिंग में ही रहना था, तो आई डिड नॉट कंटिन्यू. तो इसमें रीडिंग का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो अभी आप लोग यंग हैं, अभी से आप लोग अपनी हैबिट बना सकते हैं. रीडिंग के जरिए रीडिंग विल हेल्प यू इंटरनलाइज लैंग्वेज स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एंड थ्रू रीडिंग यू विल बी एबल टू लर्न a variety of sentence structures. तो अगर आप रीडिंग करेंगे तो जो वैरायटी होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, अच्छी राइटिंग वो नहीं होती कि जिसमें आप सारे सिंपल सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं कि हेलो माय नेम इज दिस, आई स्टडी एट दिस, आई लाइक टू डू दिस, माय हॉबीज आर दिस. ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं. तो अच्छी राइटिंग होती है जिसमें आप कंपाउंड सेंटेंसेस भी यूज करें, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज करें, जिसमें आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज करें. ये वो चीजें हैं जो मैं फंक्शनल इंग्लिश के पहले वाले कोर्स में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ. लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझेंगे. और अगर नहीं इस तरीके से पढ़ा है तो वो बुक आपके पास हमेशा जो है, इंटरनेट है, बुक है, तो आप इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड इन केस यू नीड माय गाइडेंस, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर करूंगी. हम गूगल क्लासरूम पे भी कोऑर्डिनेट करेंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कोऑर्डिनेट करेंगे. तो अगर आपको कोई भी मसला है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. ठीक है, और आप उस जगह पे ईमेल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरीके से रीडिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम हर जगह दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते. वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, बट थ्रू रीडिंग यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज. तो हम एक जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम अलग तरीके से सोचते हैं, दूसरे कल्चर के लोग अलग तरीके से सोचते हैं. तो रीडिंग हेल्प अस लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज. और इस तरीके से हमारा सोचने का जो तरीका है वो ब्रॉडन होता है, वो पर्सपेक्टिव बड़ा होता है. और इल्म का यही जो है वो एम होता है, यही पर्पस होता है कि आप सोचना सीखें, आपका एक ओपिनियन हो. और ओपिनियन कैसे बनता है? जब आपको दुनिया के बारे में पता होता है, और वो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें. अच्छा जी, एक और चीज जो मैं इस क्लास में आपको जो है वो क्लियर कर दूं, बिकॉज इट विल बी अ 40-minute सेशन. तो मैंने जो एक चीज मुझे बतानी है, क्योंकि ये कोर्स आपका पूरा राइटिंग का है. तो एक चीज है दैट इज कंसिडर्ड अ सिन इन लैंग्वेज और इन एनी अदर इन एकेडेमिया. कोई भी कोर्स का असाइनमेंट हो, दैट इज प्लेजरिज्म. मुझे उम्मीद है आपके किसी टीचर ने तो आपको ये बताया होगा, PLAGIARISM. अगर आपको इस पर ज्यादा रिसर्च करनी है, आप इस टर्म को गूगल कर सकते हैं. तो प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपको कोई भी टास्क दिया, आपको कोई भी असाइनमेंट दिया, आपने सिंपली उसको गूगल पे जाके टाइप किया और वो उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया. एक तो ये प्लेजरिज्म है. दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो होते हैं उनको पता होता है. एक तो वैसे भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके थ्रू पता लग जाता है कि आपने कितना % प्लेजराइज किया. और अगर मैंने आपके साथ कुछ क्लासेस ले लिए, मैंने आपके कुछ सैंपल्स देख लिए, तो एज अ टीचर मुझे वैसे भी पता है कि ये आपका राइटिंग स्टाइल नहीं है. तो प्लेजरिज्म बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तो ये एकेडमिकली ये सिन है. अगर आपको अभी से आदत पड़ गई तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और लोगों की इनफैक्ट जो डिग्रीज हैं वो कैंसिल हो जाती हैं अगर उन्होंने प्लेजराइज कुछ चीज सबमिट की होती है. तो कभी भी इस चीज की हैबिट मत डेवलप करें कि कोई भी टीचर बिजनेस के किसी भी कोर्स का, या मैं, या कोई भी आपको कोई टास्क दे रहा है, आप सिंपली जाके उसको गूगल कर लें. सोचें, समझें और इंडिपेंडेंटली उसको करने की कोशिश करें. इसी तरीके से अगर आप किसी और के आइडिया को चुरा रहे हैं, इंटरनेट से ले रहे हैं, और उसको आप अपने आइडिया के तौर पे पेश कर रहे हैं, भले आपने वही वर्ड्स यूज नहीं किए, आपने अपने वर्ड्स यूज किए, लेकिन आइडिया किसी और का है और आपने एक्नॉलेज नहीं किया है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, आपने उसकी सोर्स नहीं रेफर की है, दैट इज ऑल्सो प्लेजरिज्म. ठीक है. तो एक तो ये है कि अगर आप किसी के मॉडल को, किसी के आइडिया को रेफर कर रहे हैं, तो ऑलवेज यूज द सोर्स अकॉर्डिंग टू XYZ एज पर ABC. तो हमेशा एक्नॉलेज करें, उसका रेफरेंस जरूर दें, और एंड में रेफरेंसिंग के सेक्शन में भी उसको मेंशन करें. तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगी कि अनटिल अनलेस आपको रिसर्च करनी हो, आप सिंपली जाके गूगल ना करें. और रिसर्च इज समथिंग एल्स, वो आप डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ते हैं, तो उससे आपका एक्सपेंड होता है सोचने का तरीका. बट डू नॉट जस्ट सिंपली गो एंड गूगल, और एक हैबिट ना बनाएं उसको.
since ये आज first session है, हमने I gave you my introduction because I feel that you should know me as your teacher. Unfortunately, because of the circumstances, I couldn't have your introduction. But whenever we meet in person session, I'll definitely have your introductions. अच्छा, कुछ then I thought I discussed the basics of communication skills, in the sense that why is it important for you to have that communication skill. तो importance of communication skills हमने discuss किए हैं. फिर हमने एक पूरा जो functional English 1 में जो basic form किया जाता है, जो भी grammar के language के basics होते हैं, reading की importance है, listening skills क्यों जरूरी है, 4 skills of language कौन सी हैं, उसका मैंने एक review दिया आपको इस session में. और फिर मैंने बात की कि किस तरीके से आपको अपने काम को करना है. इसी तरीके से इस सेशन में एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है रूल्स कुछ. तो जब भी आप मेरी क्लास लें, अभी 40 मिनट्स का सेशन है, प्लीज कीप अ स्मॉल नोटबुक विथ यू, और जो मेन जो आपको लगे कि ऐसी जरूरी चीज है उसको सिर्फ आप नोट कर लें. अब मेरा मतलब ये नहीं कि आप मेरी हर बात को लिखें, लेकिन एक पॉइंटर लिख लें ताकि एक छोटी सी नोटबुक हर वक्त आपके पास रहे. अगर कोई ऐसी बात आपको अच्छी लग रही है, ऐसी कोई चीज अच्छी लग रही है, या अच्छी नहीं भी काम की चीज है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भी आप उसको बस छोटे से पॉइंटर्स में उस नोट्स को रखें. और ये मैं ऑब्वियसली मैं हर बच्चे को, आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, मैं हर बच्चे का चेक तो नहीं करूंगी, लेकिन ये मैं आपकी लर्निंग के लिए बता रही हूँ कि हर क्लास के बाद उसी नोटबुक में एक रिफ्लेक्शन लिखें. जैसे क्लास खत्म हो गई तो यू कैन रिफ्लेक्ट बैक कि अच्छा आज मैंने व्हाट डिड आई लर्न, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं अपने अंदर चेंज करना चाहूंगी या चाहूंगा, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे अभी करनी है एक हफ्ते में, तो वो आप एक लिख लें. रिफ्लेक्शन हमेशा लिखा करें, इससे आपको एक आदत होगी कि यू विल नो कि वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू नीड टू बी. ठीक है. और एक चीज कि जब भी आप मेरी फिजिकल क्लास लेंगे, 1-on-1 हमारा सेशन होगा क्लास में यूनिवर्सिटी के अंदर, तो नो सेल फोन्स ड्यूरिंग माई क्लास. तो वो एक अलग चीज है, वो जब हम फिजिकल क्लासेस लेंगे तो तब. और अच्छा, तो ये बेसिक्स हैं कुछ. और आई होप कि जो फर्स्ट चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी एज अ मैच्योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वो है रिस्पेक्ट your teacher, do your task and try to become a better student, better as an individual. और जो मैं आपके लिए चाहूंगी वो है एक better reading skills. Definitely कि आप importance of reading को समझ जाएं. Believe me, if you are able to develop the love of reading, then you start enjoying it. So in the second session, I will be discussing the approaches, different approaches to writing skills, the basics of writing skills. So see you in my second session. Thank you.